Today, ladies and gentlemen, we will talk about non-banking financial companies. As per India Ratings report, which was published recently, and I quote, various RBI policies in the aftermath of the pandemic ensured liquidity support, moratorium, and asset classification standstill. This eased the financial conditions and gives NBFCs adequate time and wherewithal to weather the shock and leverage of their grassroots level reach. So, Praveen, आप पिनकैप कई पिछले सालों से चला रहे हैं and it is one of the brightest NBFCs in this country. What has been your experience over the last 2 years? And secondly, do you agree with India Ratings report that NBFC sector has been a lot more resilient in the third wave than it was in the first 2 waves? So, I would say that to a very large extent, the observation has been right. And what we have seen in the first wave, there was a big shock. And we have seen the whole economy and the sector was not ready. The banking sector was not ready. The businessman, the individual and the personal loan section. People were not aware how the things will pan out. And there was a phase where RBI did support, that they did enable in terms of moratorium and also a credit line. So it was good for business, and because of those support, many of the businesses were able to sail through that phase and then became healthy enough to repay their EMIs. So to a large extent, I would say that the kind of shock that we felt in the first wave had reduced in the second, and we feel least resilience, or I would say least resistance in terms of bouncing back during the third wave. We'll have to assess the sector as well, because during this phase, the businesses tend to go down, except for a few sectors like grocery, etc. And those metrics has already been considered in the first and second wave. So more or less, I think at least this sector has learned to live with COVID. So, and I wish that it does not continue, but they have already learned their lessons and have started coexisting with COVID. Being in the essential segment, the operation and business does not shut down during this phase. So that also enables a smooth functioning of this sector. Okay. Now, Praveen, we have spoken to a lot of CEOs and various industry leaders in the past 6 months, and everybody has their own subjective answer when it comes to effects of COVID on their industry. And of course, you deal with a barrage of clients operating from different sectors. How has been your clients' response? I mean, when you talk to the businesses which seek loans, business loans, what are they going through? What is there? Which is the sector which comes out as most vulnerable? And which is the sector which is least vulnerable? I mean, for them, arranging a line of credit or seeking a business loan is not something which they will be worried of. So the two sectors that are very, very impacted, and that also negatively, I would say, is food, restaurant and catering. It also includes travel business, hotels, resorts, etc. So those sectors have been highly impacted, and we need to ensure, though the online delivery makes some part of it, but the overall functioning and the cost, unless there is a rental correction or an adjustment, the viability is not there. Sectors which are in fact gaining out of it is pharma sector, health sector, and as well as online delivery of essential products and commodities. So even online grocery or online e-commerce portals are doing decently and relatively much better. Most of the e-commerce are in the loss-making phase, but store which had a hybrid model are not only profitable, but their growth on the online segment is increasing and adding to their bottom line. So that becomes a very easy sector to get funding. Okay. Yeah. Okay. Okay. तो आपने अपनी पूरी सेल्स टीम को हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर के पीछे लगा के रखा होगा. This would be safe to assume. नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग थोड़ा सा कैश फ्लो देखते हुए लेते हैं कि कितना परसेंटेज ऑनलाइन है, कितना परसेंटेज ऑफलाइन है. अगर कोविड का सिचुएशन आया तो भी ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा और स्केल कर जाएगा और इतना लोन तो ये लोग रीपे कर पाएंगे. तो स्मार्ट
एनालिसिस होने लगी है, ऑल्टरनेटिव डेटा चेक होने लगा है और मॉडल भी फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। तो काफी सारा री इंजीनियरिंग हो रहा है। इनफैक्ट अभी बहुत सारे फिनटेक इनोवेशंस भी हो रहे हैं, जैसे जहां पे एनबीएफसीज स्मॉलर पॉकेट्स को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, वहां पे काफी स्मार्ट एंड पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स माइक्रो लेवल पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो स्केल भी करेंगे, बट आज के दिन वो साइज छोटा है बट अच्छा सोल्यूशन निकाल के ला रहे हैं। तो उनके साथ भी हम लोग कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो सर्विसेज, सिंस दे आर वेरी क्लोज टू कस्टमर्स एंड दे आर वेरी डेटा intensive, we come to know of situations and risk alertness much faster. तो ये भी एक सेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो फिनटेक स्पेस काफी इनेबल कर रहा है, not only during COVID but otherwise also they are coming out with many innovative solutions. Great. Now, Praveen, if I ask about the kind of loans which are there in the sector, which is the kind of business loan which is seeking maximum demand? Is it equipment loan financing? Is it point of sale? Is it credit supply, credit line of growth? Which is the category of business loan which is seeking maximum customer retention? तो कस्टमर रिटेंशन भी है और बहुत ज्यादा ग्रोथ भी है, वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिमांड भी है और वो अक्रॉस सेगमेंट्स चलता है। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं, अभी कितने सॉल्व कर पाएंगे नहीं पता, बट सप्लाई चेन। और ये क्या ये एज्यूम करना गलत होगा प्रवीण दैट मोस्ट ऑफ द डिसरप्शन इन दिस केस इज हैपनिंग बिकॉज चाइना का जो सप्लाई चेन मॉडल था वो डिसरप्ट हो गया है पिछले 2 साल में? मैं बोलूंगा थोड़ा इम्पैक्ट तो है अभिनव, लेकिन एसेंशियली ये कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है। शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। मतलब हमारा जो डिपेंडेंसी चाइना पे अभी भी है, काफी इंडियन ओनरशिप कंपनीज और मेक इन इंडिया की तरफ रुझान है लोगों का, काफी ज्यादा सपोर्ट भी है। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड स्पेशली गवर्नमेंट ड्रिवन जो पीएसयूज हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो टेंडर, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट इंश्योर करते हैं कि मेक इन इंडिया को ही प्रमोशन मिले। तो इसका इम्पैक्ट है, लेकिन अभी भी डिपेंडेंसी देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक में या चिप में हम लोग अभी भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाए और उसमें थोड़ा होगा, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सप्लाई चेन में इंपोर्ट फाइनेंस के अलावा इंडिया में जो ऑनलाइन डिमांड बढ़ा है, जिसके कारण ना सेगमेंट में बहुत ज्यादा उछाल आया हुआ है। और वर्किंग कैपिटल लोन जो बड़े बैंक्स देते हैं उनका एक लिमिट है और वो टियर 3 तक नहीं पहुंच पाते। जैसे लेट्स से एक बड़ी ओईएम है, उसका पहला लेयर पहुंच जाएंगे, दूसरा लेयर भी पहुंच सकते, तीसरे लेयर तक कभी भी बड़े बैंक्स नहीं पहुंचते। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल के इश्यूज आते हैं। छोटी कंपनीज एसएमई एमएसएमई में बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उस सेगमेंट में जो वेंडर फाइनेंस है या फैक्टरिंग है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग है, इस तरह के प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड है। अभी तक वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया है, अदरवाइज Sure. Now, I'm glad you mentioned factoring. There was this recent amendment of the Factoring Regulation Act when it comes to like NBFC regulation and incentivization, and that has incentivized a lot of NBFCs. At least that's what RBI and a lot of rating agencies say. I would want to know your opinion on it, on the amendment of the Factoring Regulation Act. तो अभिनव ये काफी प्रोग्रेसिव मूव है, आरबीआई ने काफी इनेबल किया, जिससे एक क्लियर फायदा तो ये हुआ, जो ट्रेड एक्सचेंजेस बने हुए थे उसमें बैंक्स और एनबीएफसी विद फैक्टरिंग लाइसेंस ही अलाउड, तो उसमें भी काफी बढ़ावा हुआ है। और हम लोगों के पास भी फैक्टरिंग लाइसेंस है, तो हम लोगों को भी इससे होगा। लेकिन इस सेगमेंट में डिसरप्शन लाने के लिए ये पहला स्टेप है। इसमें काफी सारे और काम करने होंगे जिससे ये सही ढंग से एक्सेप्टेंस हो पाए और स्केल भी कर पाए। इसका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ज्यादातर जो ट्रेड एक्सचेंज है वहां पे जो AAA रेटेड या AA रेटेड कंपनीज हैं, उनको फैक्टरिंग तो मिल जाता है, पर उनको बैंक से भी लाइन मिल जाता है।
प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे कंपनीज रेटेड नहीं है, छोटी हैं या लोअर रेटेड है। और फैक्टरिंग अगर इंश्योर किया जाए कि इनवॉइस और जो हमारा लीगल मैकेनिज्म टू रिकवर है वो अगर टाइट हो जाए, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है इंडियन इकोनॉमी को इनेबल करने का और वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो दो लेवल पे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एक जो लीगल कंप्लायंस और कलेक्शन है वो नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने इसमें काफी सारे काम किए हैं, जैसे आपका एक टूल है जिसमें अगर एसएमई एमएसएमई को पैसे समय से नहीं मिले तो आप वहां ग्रीवांस रेज कीजिए, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। अदर देन गोइंग रेगुलेटरी लीगल नोटिसेस एटसेट्रा, गवर्नमेंट आल्सो डज सपोर्ट, बट जनरली देयर सपोर्ट इज फॉर through large corporates or through public sector units. So if it can be made, if the contract on payment is respected, many of these issues will get solved, and this will become a very, very impactful tool for SME MSMEs to get funding. Okay. That's a fair point. Now, Praveen, your last answer थोड़ा सा मुझे intrigue कर दिया, इसलिए मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहता हूँ। एनबीएफसी स्पेस में अभी कंसोलिडेशन काफी देखा जा रहा है, लाइक श्रीराम कैपिटल, अभी वी स्पोक टू द मैनेजमेंट अभी ऑफ लेटली, दे हैव कंसोलिडेटेड ऑल देयर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग अंडर वन रूफ एंड अदर फाइनेंसिंग जो कि नॉन इक्विपमेंट फाइनेंस एक तरफ है। तो डू यू थिंक कंसोलिडेशन विल आल्सो बी वन ऑफ द मेजर factors affecting the sector of NBFCs going forward? So I think absolutely, and you will see consolidation has happened because of some of the banks and non-banking companies are not performing well as well. दो तीन correct हुए और मार्केट हमेशा इस फेज ऑफ मेच्योरिटी, कंसोलिडेशन, अगेन डिसरप्शन, वो साइकिल तो चलता रहेगा और कंसोलिडेशन होगा और फाइनली जो फेज है बड़े बैंक्स होंगे और एक मिड साइज सेगमेंट होगा, उसके बाद केवल बुटीक रहेंगे। जो स्पेशलाइज्ड नहीं है उनका स्पेस धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि थ्रू टेक्नोलॉजी मेनी ऑफ द बैंक्स आल्सो विल नॉट नीड ब्रांचेस एंड दे विल बी एबल टू प्रोवाइड हैसल फ्री सॉल्यूशंस। तो आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली, बट इफ यू सी द फेसेस विल टर्न आउट वेयर कंसोलिडेशन विल हैपन नेसेसरीली एंड दैट विल बी द डिमांड ऑफ द सेगमेंट। That will be the demand of the segment. And when it comes to demand, Praveen, budget is round the corner. I won't, for the lack of better word, I won't put demand, but what would be your expectations for the upcoming budget pertaining to your sector and your industry? What do you think Finance Minister should help people like you think and move forward? How the budget can help the industry? What would be your expectations from this budget? तो मैं मैक्रो लेवल पे जाने के बजाय आपको प्रैक्टिकल 2-3 विश लिस्ट ऐड करता हूँ। अच्छा, एक तो है कि अभी ना इस सेगमेंट में काफी सारे फ्रॉड होते हैं और कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड के कारण बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर से काफी लॉस में पहुंचा दे रहे। तो इसके उपाय भी किए गए और आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले गए जिससे काफी कंट्रोल में आएगा। अब इस सॉल्यूशंस में बहुत बार ना कोलैटरल डैमेज हो जाता है, तो उसको कोई और बेटर तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से किया जाए तो अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है कि कंपनीज के जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ओडी अकाउंट, तो ओडी अकाउंट आप अगर एक बैंक के साथ लोन चल रहा है तो आप दूसरे बैंक के साथ आप ओडी अकाउंट नहीं खुलवा सकते अनलेस वो 10% लोन वहां से भी हो। अब प्रैक्टिकली बिजनेस ऑपरेट करता है तो अलग अलग अकाउंट अलग अलग पर्पसेस के लिए रखता है ओडी अकाउंट्स, तो उसको प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा है। इंटेंट बहुत सही है क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं वो ओडी अकाउंट खुलवा के तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट ऐसे करके फ्रॉड भी करते हैं। So there is a line of balance that needs to be there. I don't know how to correct it. For example, one way can be you have a central, the way there is this reporting of credit scores. उसी तरह से OD accounts का भी होता है कि बैंक्स वगैरह वो डेटा चेक कर पाए, यूनिफॉर्म अकाउंट हो। इस तरह के कुछ तरीके लाए जाएं ताकि प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी ना हो और फ्रॉड भी रुक जाए। एक तो ये है।
दूसरा एक बहुत अच्छा रेगुलेशन आया था NCLT का, और जिस इंटेंट के साथ आया था वो पूरी तरह अभी कैप्चर नहीं हुआ है। तो जो भी आप नया तरीका निकालते हैं उसमें थोड़ी चैलेंजेस आते हैं, बट NCLT से सोल्यूशन जो एक्सपेक्टेड था बैंकिंग और NBFC सेक्टर को, वो पूरी तरह से आ नहीं पा रहा। ओके। हाँ, तो उसको और एफिशिएंट कैसे किया जाए और इफेक्टिव कैसे किया जाए, और टाइमली रिजोल्यूशन उसका एक प्रपोजल था। तो टाइमली रिजोल्यूशन पे भी काम हो, और उसका कॉस्ट ऑफ NCLT रिकवरी शुड बी लोअर, ये है। और तीसरा एक और पॉलिसी आया था जो आपके सेक्शन 138 में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसमें था कि जब आप चेक बाउंस कराते हैं तो आप कंपलसरी कर दीजिए कि कुछ परसेंटेज कोर्ट में या क्लाइंट को डिपॉजिट करा दें। उससे ना ये टाइमलाइन ऑफ रिकवरी विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। पैसे पे विवाद है कि आपको बनता है या नहीं बनता है, बट एटलीस्ट कोर्ट के पास रखवा दें, क्योंकि वो कोर्ट के पास रखते ही सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इस तरह से प्रैक्टिकल है, क्योंकि बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंट्री में रेस्पेक्ट किया जाए और टाइमली रिकवरी हो पाए, तो बैंकिंग एंड NBFC सेक्टर विल बी मच मोर हेल्दियर। करेक्ट। बट ऑन अ लार्जर नोट, प्रवीण, ये जो आपने रिफॉर्म्स बोले, they've got nothing to do with budget. They're more systemic and structural reforms which are needed for the sector. So I understand where you come from as well. बात तो फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाने की थी। Fair enough. Naveen Sinha, thank you so much for your time. This was really insightful. I hope to catch you on the budget day. तब तक के लिए नमस्कार. Bye bye. Thank you.